Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Mantra. Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your hostess Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार ए.के. भट्टाचार्य। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ लालिमा। Thank you, Amit. Yes, let's begin with the headlines. Reserve Bank of India maintains the repo rate unchanged at 6.5%. Domestic benchmark indices witness gains of more than 0.5%. Sensex ends near 66,000 mark, while Nifty closes above 19,650 level. And Brent crude prices stable to trading at $83.83 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा। घरेलू शेयर सूचकांकों में 0.5% से ज्यादा की तेजी। सेंसेक्स 66,000 और निफ्टी 19,650 के स्तर से ऊपर दर्ज। और वैश्विक बाजारों में ब्रेंट क्रूड $83.85 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुआ। All right, while announcing the bi-monthly monetary policy, the Governor, Reserve Bank of India, Shri Shaktikanta Das, said that India is poised to become the growth engine of the world. All 6 Monetary Policy Committee members unanimously voted to maintain the repo rate at 6.5%. This is the 4th consecutive time that the RBI maintains the rate unchanged. Speaking about the retention of repo rate, the governor said that the transmission of 250 basis points increase in repo rate is still incomplete. In the February 2023 Monetary Policy Committee meeting, the rate was hiked from 6.25 to 6.5%. Real GDP growth forecast retained at 6.5% for financial year 2023-24. RBI in its report states that higher inflation is major risk to macroeconomic stability and sustainable growth. Therefore, the inflation forecast has also been retained at 5.4% for financial year 2023-24. Further, limit of gold loan under repayment scheme for urban cooperative banks has been doubled to 4 lakh rupees. Payments Infrastructure Development Fund scheme extended by 2 years to December 2025. Preventing food and fuel price shocks are non-negotiable necessities. The governor also stated that RBI has plans to undertake open market operation with regard to government securities to manage liquidity via auction mode. The next Monetary Policy Committee meeting is scheduled for the 6th to the 8th of December 2023. हमारे साथ चर्चा करने के लिए ऑनलाइन मौजूद हैं ए.के. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। भट्टाचार्य जी, कैसे आंकते हैं रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों यानी रेपो रेट को बरकरार रखा है? हालांकि उम्मीद तो यही की जा रही थी, लेकिन रिजर्व बैंक के सामने इन ब्याज दरों को यथावत बनाए रखने के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? क्या मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर अभी भी कोई एक बहुत बड़ी चुनौती या चैलेंज बना हुआ है? देखिए, जो मुद्रास्फीति का जो डर है वो अभी भी है, क्योंकि अगर आप गवर्नर साहब की स्टेटमेंट की ओर देखें, उन्होंने 4% की जो रेट है उसमें एक नज़र लगाने की बात की है। इस वक्त जो आपने जो उनका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना ही जो एस्टिमेट जो है वो 5.4% का इस साल में है। तो हालांकि वो 6% ऊपर का टॉलरेंस बैंड के नीचे आ रहा है, पर तब भी अगर दूसरी तिमाही में देखेंगे उनका एस्टिमेट 6% के ऊपर जाता है। तो इसीलिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक कंजर्वेटिव एक अप्रोच लेकर 6.5% के रेपो रेट में एक स्थगित
वही रेट कर दिया है। उसके और भी काफी कारण हैं। उसमें अगर आप देखें कि जो वैश्विक ग्रोथ जो है वो अभी, या मोमेंटम जो है, गति जो है, उसमें थोड़ा धीमापन आया है। जो विश्व की ओर देखें तो इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, पर अभी भी वो जो टारगेट रेट से उसके काफी ऊपर है। और फाइनेंशियल मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो भी काफी कंसर्न का कारण बन सकता है। फूड प्राइस लेवल शॉक्स आ सकते हैं इसी कारण। हालांकि जो भारत की जो मेन ब्रॉड इंडिकेशंस जो हैं, अगर आप प्राइवेट कंजम्पशन को देखेंगे या इन्वेस्टमेंट डिमांड को देखेंगे या जीडीपी ग्रोथ देखेंगे या खरीफ एकरेज को देखेंगे, आईआईपी को देखेंगे या कोर सेक्टर को देखेंगे या परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स को इंडिकेटर देखेंगे, सब चीज को देखते हुए भी एक कंजर्वेटिव और कॉशनरी अप्रोच लिया गया है कि जो रेट जो है वो घटाया नहीं जाए और जो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन वो भी अभी भी स्टैंड को बरकरार रखें। हालांकि उसमें एक कंसेंसस नहीं था, यूनानिमिटी नहीं थी, पर तब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक कॉशनरी एक स्टांस लिया है। मैं समझता हूं कि देश की अर्थनीति और वृद्धि को बरकरार रखने के लिए ये एकदम सही कदम लिया गया है। अभी दूसरी तिमाही के नतीजे, कंपनी जगत की दूसरी तिमाही के नतीजे हम कुछ ही दिनों में देखना शुरू कर देंगे और इस तरह जो शेयर बाजार की दशा और दिशा है वो कम से कम ये बताती है कि हमारा उद्योग जगत कम से कम एक बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, अगर उनके हम नतीजों के बारे में अनुमान अगर लगाएं। ऐसी दशा में, और जब त्योहारी सीजन भी कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, ऐसी दशा में रिजर्व बैंक के पास कितना स्कोप था कि कहीं वो इसमें कुछ घटाने की तरफ से सोच सकता, या हम ये माने कि जब दिसंबर में रिजर्व बैंक की नीतिगत बैठक होगी उसमें अभी उसके पास कहीं ना कहीं शायद रास्ता निकल पाए कि ब्याज दरों में कुछ राहत दे सकें? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई इकोनॉमिक पॉलिटिकल वैक्यूम में काम नहीं करती है। उनके पास जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो एक कमिटमेंट है, उनका जो पूरी तरह से जो इन्फ्लेशन को स्टेबल 4% के आसपास लाने की जो एक उनका कमिटमेंट जो है, उसको आपको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल संदर्भ में देखना होगा। एक तरफ हमारे देश में बहुत सारे इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन में आप ये देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन अगर इस वक्त थोड़ी भी अगर ऊपर चली जाए इन्फ्लेशन, तो जो इंसिपिएंट साइंस ऑफ ग्रोथ दिख रहे हैं उसके ऊपर एक चोट या एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसी कारण मैं समझता हूं कि इंटरेस्ट रेट घटाने की जो हम आशा दिसंबर की त्रैमासिक नीति में सोच रहे हैं वो शायद इस वक्त करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया है कि अगर जरूरत पड़े लिक्विडिटी की तो वो ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन से वो पैसा मार्केट को, लिक्विडिटी डिमांड को वो मीट कर देगा। तो मैं समझता हूँ ओएमओ का जो ऐलान करना एक बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है कि दिसंबर की भी नीति शायद इसी तरह स्टेटस को बनाए रखने की हो। So we are, as far as inflation goes, we're probably better than many other countries around us. Looking at the way globally, global economy is going. When we talk of real GDP growth forecast being retained at 6.5% for financial year 2023-24, what do we mean by that? Well, what you mean by is that the private consumption and investment demand both will continue to provide support to India's pace of economic activity. And what is very clear is that given the fact that the recent indicators of the first quarter growth and the July number of index of industrial production and the core sector growth of 12% growth in August, all these indicate that the growth momentum is still there. But this growth momentum has to be maintained, and this momentum cannot be lost if the monetary policy increase that has been effected so far, 2.5 percentage point increase in the last year and a half, they are still transmitting. So their impact is still being felt.
So till that transmission process is completed, I would say that the growth momentum of 6.5% that the RBI is projecting needs to be preserved without any haste in any bringing down of the interest rate, the repo rate. Because remember, if inflation goes out of control, it is the biggest dampener to growth prospects and the biggest tax Yes. on the ordinary people as well. बहुत संक्षेप में मिस्टर भट्टाचार्य एक चीज जरूर जानना चाहूंगा, आपने अपने जिक्र किया कि चुनावी माहौल बनने वाला है देश में, इसका भी एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव होता है देश की अर्थव्यवस्था में। ऐसे तौर पे महंगाई के दर में संतुलन बनाए रखते हुए और ग्रोथ को भी बरकरार रखना कितना चैलेंजिंग होता होगा, और ये कितना करने में रिजर्व बैंक सक्षम हो पाएगा? देखिए, रिजर्व बैंक का जो काम है वो प्राइमरीली जो मुद्रास्फीति के दर को ऊपर रोक लगाना, उसकी इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजिम है। पर ये काम जो अर्थनीति का जो पहिया, एक तरफ इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, और एक तरफ वृद्धि दर है जी, वो ये चीज दोनों को बरकरार रखने के लिए, दोनों गोल्स को अचीव करने के लिए सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गतियां नीतियां हैं वो काफी नहीं होंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन रोड मैनेजमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा, पर उसके साथ साथ जो केंद्रीय सरकार है और जो हमारे जो 30 स्टेट गवर्नमेंट जो हैं उनको भी एक वित्तीय अनुशासन के अंदर चलना होगा। इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार इन्वेस्टमेंट और कैपेक्स में काफी जोर देकर और अपनी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर रोक लगाकर जो फिस्कल जो कंसोलिडेशन का प्रोग्राम जो टारगेटेड पाथ के ऊपर चल रहा है। पर अगर हम देखें कि जो केंद्र सरकार अगर फिस्कल कंसोलिडेशन के मामले में थोड़ी बहुत अगर ढीलापन दिखाए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए ज्यादा सख्त दिखाए, मैं समझता हूं कि अर्थनीति की जो पूरी तरह सार्वत्रिक जो एक पॉजिटिव आउटकम होगा वो कम होगा। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकारों को एक साथ मिलजुल कर एक तरफ मॉनेटरी पॉलिसी का मैनेजमेंट और दूसरी तरफ फिस्कल पॉलिसी का मैनेजमेंट, दोनों को बागडोर संभालना होगा और उसी से हम ग्रोथ और इन्फ्लेशन के ऊपर एक कब्जा पा सकते हैं। ग्रोथ बढ़ेगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। जी, कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपए के नोटों को बदलने की संशोधित समय सीमा के लगभग समाप्त होने तक 12,000 करोड़ रुपए मूल्य के 3.37% नोट प्रचलन में अभी भी बचे हैं। मुंबई में आज संवाददाताओं से बातचीत में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 3,43,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोटों को अब तक बदल दिया गया है। इनमें लगभग 87% बैंक में जमा के माध्यम से, जबकि बाकी बैंक काउंटर से सीधे बदले गए हैं। 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक द्वारा नोटों के प्रचलन को बंद करने की घोषणा के समय 3,56,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट प्रचलन में थे। हालांकि 2,000 रुपए के नोट वैध मुद्रा बनी रहेगी, लेकिन इन नोटों को बैंक अब स्वीकार नहीं करेंगे। 7 अक्टूबर के बाद रिजर्व बैंक की 19 शाखाओं में से एक समय में 20,000 रुपए तक के नोट बदले जा सकेंगे। Mr. Bhattacharya, when we say that 3.37% of currency notes, which actually translates into 12,000 crore rupees, still remain in circulation, why haven't they been deposited? Blame it all on the NRIs being abroad, or what do you think are the reasons that? There are. It's a very important question. There are many possibilities. People may not have readily in possession with them. It's possible that Indians abroad have got that money. So it is important to note that the Reserve Bank of India has as yet not indicated clearly what will be the status of these 2,000 rupee notes after 7th of October. So ideally the Reserve Bank of India should clearly give a timeline of its action so that there is no panic in the system. But right now with 12,000 crore notes, most of the notes most probably are abroad, and those notes which are in the country, probably people are not willing to come forward and make those disclosure, because it does mean that you come out in the open and you will be coming you will be under monitor. So therefore I don't see this as a big panic. Reserve Bank of India must be complimented for the manner in which it managed. It's a staggered way of withdrawing
these 2,000 rupee notes. Probably this will lead to, at some point, declaring them illegal tenders, and maybe introduction of another denomination currency note, maybe of 1,000 rupee notes. जी नफे डॉलर शेयर बाजार की हलचल पर वैश्विक बाजारों के मजबूत संकेतों से घरेलू शेयर बाजार में आज भी तेजी का दौर रहा। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज आधा प्रतिशत की बढ़त से 364 अंक बढ़कर 65,996 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी आधा प्रतिशत की मजबूती से 108 अंक बढ़कर 19,654 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसए मिड कैप सूचकांक में 0.7% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.6% की बढ़त दर्ज हुई। The key domestic share indices today ended around 0.5% up. The BSE Sensex closed near the 66,000 mark, while the NSE Nifty crossed 19,650 points. Both indices grown amid mixed global cues. The Sensex gained 364 points at 65,996, while Nifty increased by 108 points to close at 19,654. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.66% and the small cap index rose 0.56%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 23 companies appreciated while 7 companies declined. Bajaj Finserv climbed 5.9%, Bajaj Finance gained 4.1% and Titan jumped 3%. On the other hand, Hindustan Unilever declined 0.9%, Asian Paints fell 0.4% and Bharti Airtel slipped 0.3%. In sectoral indices at the BSE, all sectors logged gains except telecommunication, which lost 0.4%. Realty sector surged 3% and consumer durable gained 1.5%. Services sector rose 1.1% and financial services added 0.8%. The overall market breadth was positive as shares of 2,312 companies gained while those of 1,334 companies declined. A total of 154 shares remained unchanged. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 83 रुपये 25 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स 106.3 के स्तर पर दर्ज हुआ। मिस्टर भट्टाचार्य, शेयर बाजार की दशा किस तरह से आंकेंगे? हालांकि आधा प्रतिशत की लगभग मजबूती है, वैश्विक बाजारों के संकेत भी अच्छे नजर आ रहे हैं, वहां से भी बाजार में उत्साह है। बाजार किस दशा की तरफ या किस दिशा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या लगता है कि जो कंपनी जगत के, उद्योग जगत के जो दूसरी तिमाही के नतीजे हैं वो वाकई में उत्साहजनक हैं, जिससे बाजार में एक मजबूती का दौर बना हुआ है, या बाजार अभी एक रेंज बाउंड मोड में ही चलेगा? देखिए, बाजार इस वक्त रेंज बाउंड मोड में ही है। अगर आप पिछले 2 दिन में जो लिवाली जो हुई है, उसका प्रधान कारण ये है कि उसके पहले के 2-3-4 दिन तक में काफी बिकवाली हुई थी। तो मैं समझता हूं कि जो मार्केट अगले सप्ताह तक, जब तक ना हमारी जो दूसरी क्वार्टर की जो रिजल्ट्स आना शुरू होगा, उसका इंडिकेशन न मिलेगा, तब तक मैं समझता हूं कि ये मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा। आज की जो रिकवरी मार्केट में दिखी है वो थोड़ी बहुत तो मिक्स्ड आउटकम, जो साइंस ग्लोबल आउटकम, ऑयल प्राइसेस का दिशा और डोमेस्टिक डेवलपमेंट, जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस जो है, उससे भी काफी उसका इम्पैक्ट हुआ है। मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट इसी तरह थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे इसका ये रवैया चलता रहेगा. One change that we've been seeing, and a positive one at that, is that the small cap index has strengthened. Today our report says it rose by 0.56%, but we are seeing a very strong small cap index. What does it indicate for the economy? Does it mean that the ordinary citizen has greater faith in the country is growing? I think what is happening is that both the small cap and the mid cap, yes, you had seen a lot of selling about 2 months, a month and a half ago, and what you have seen in the last 4 weeks or 5-6 weeks, you have seen a recovery of sorts in the small cap and the mid cap index. And it only indicates that the losses that you sustained have been recovered. If you look at it from an overall point of view, you will see even in the small cap and the mid cap, this sharp rise is probably not reflecting
the inherent strength of this sector, there is a lot of expectation, and market experts do believe that particularly in the mid-cap segment, there is a lot of froth in that market. So in terms of assessment by the investors for these sectors, I would say the mid-cap and the small-cap indices are not reflective of the inherent strength of the market. On the contrary, they are reflective of some froth in the market. मिस्टर भट्टाचार्य, बहुत संक्षेप में ही जानना चाहूँगा, रियल्टी सेक्टर की अगर खास तौर पे बात करें, 3% की आज तेजी है और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स में भी तकरीबन 1.5% की तेजी है। क्या माना जाए कि जो भारत का मध्यम वर्ग है वो अपनी परचेजिंग पावर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से इन कंपनियों को या इस क्षेत्र में कुछ मजबूती आ रही है? अगर आप फाइनेंशियल सर्वे भी देखेंगे, उसमें भी आप ये देखेंगे कि जो मध्यम वर्ग जो है वो अपनी जो उनकी फाइनेंशियल सेविंग्स में कमी दिख रही है और वो फाइनेंशियल सेविंग्स का इस्तेमाल रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ज्यादा जा रहा है। तो मतलब बचत से निवेश बढ़ रहा है। हाँ, वो बढ़ रहा है। इसीलिए ये जो पैसा जो आ रहा है मध्यम वर्ग का ही पैसा है, पर वो किस सोर्स से आ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। जो डेटा अगर मिलता है उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो फाइनेंशियल सेविंग्स जो नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट्स को डिपॉजिट्स कहिए उसमें ना जाकर ये रियल्टी सेक्टर में जा रहा है। हालांकि ये अनसस्टेनेबल नहीं है, प्रॉब्लम वाली नहीं है, पर ये एक डायरेक्शन है, उसको हमें क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। जी, नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आमतौर पर मजबूती का रुख रहा है। हांगकांग का हैंगसेंग 1.6%, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स 0.6% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी मामूली बढ़त से बंद हुआ। जापान का निक्केई 0.3% की गिरावट से बंद हुआ। हालांकि चीन के शेयर बाजार में अवकाश रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में तेजी का दौर रहा। जर्मनी, फ्रांस और लंदन के शेयर सूचकांक सत्र के दौरान लगभग 1% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। A look at the US markets now. The three major US indices ended just slightly lower after bouncing off session lows yesterday, amid investors awaited Friday's monthly jobs report and further possible clues on the outlook for interest rates. The Nasdaq Composite and the S&P 500 both fell 0.1% and the Dow Jones Industrial Average slipped 0.03%. How do you view the US economy, Mr. Bhattacharya? Well, right now the U.S. economy is going through a bit of a political instability because of the government shutdown fears. The fears were very, very real at one point in time, but they were averted until November only. In the meanwhile, the Speaker McCarthy's dismissal has created more uncertainty what will happen in November. So the government uncertainty is definitely impinging and impacting on the outlook on the US markets. I would imagine that this uncertainty will continue to play a role in the way the US markets perform within US as well as its impact is felt on the emerging economies like India. मिस्टर भट्टाचार्य, बहुत संक्षेप में जो यूरोपीय बाजार की भी दिशा है और एशियाई मार्केट्स को भी अगर हम देखें, वहाँ पे भी एक कंसिस्टेंसी लेवल बना हुआ है। तकरीबन अगर हांगकांग की बात करते हैं या सिंगापुर की बात करते हैं, वहाँ पे निश्चित तौर पे बढ़त है। हालांकि जापान में आज थोड़ा सा निराशाजनक रहा, लेकिन यूरोपीय मार्केट्स में चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस और लंदन हो, तकरीबन 1% तक की शुरुआती बढ़ोतरी थी। किस तरह से आंकते हैं, क्या भरोसा बढ़ना शुरू हो गया है या इसके पीछे कहीं ना कहीं और भी कुछ कारण है? देखिए, जो यूरोपियन मार्केट को अगर आप देखेंगे तो जो ग्रोथ का जो मोमेंटम जो है वो अभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आया है। हालांकि उसका जो मोमेंटम जो होना चाहिए था उसमें अभी तक नहीं आ सके वो, और इन्फ्लेशन जरूर कम हो रहा है। अगर आप यूरोप देखें या इंग्लैंड यूके का मार्केट देखें, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, पर अभी भी जो उनकी जो टारगेट जो है उसके नीचे है। और जो उनकी फाइनेंशियल मार्केट जो है वो तो काफी वॉलेटाइल है। तो मैं ये समझता हूँ ये 3 प्रधान कारणों से इनकी जो यूरोपियन मार्केट में जो एक स्थिति बनी हुई है कि न इधर जाए न उधर जाए, एक वो आई है, उसी इनके प्रधान इसके कारण हो सकते हैं। जी जी जी।
All right, let's move on. Well, REC Limited, the Maharatna Central Public Sector Enterprise under the Ministry of Power, launched a mobile application exclusively for current and future investors in REC's 54 EC capital gain tax exemption bonds. Named Sugam REC, the mobile app will offer investors with complete details of their investment in REC 54 EC bonds. Investors will be able to download the e-bond certificates, apply for fresh investment, download important forms related to updating of KYC, and also connect with REC's investor cell via call or email or WhatsApp. So that's Digital India, a step towards that direction, isn't it, Amit? Well, let's move on, and we can't have Market Mantra without the talk of oil. Brent crude prices were stable today, but were on course for a week-on-week loss as demand fears driven by macroeconomic headwinds were compounded by another partial lifting of Russia's fuel export ban. In intraday trade, Brent crude was trading at $84.40 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $83.85 per barrel when reports last came in. मिस्टर भट्टाचार्य जी, बहुत संक्षेप में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उसने बहुत पूरे वैश्विक जगत को चिंता में अक्सर डालते रहते हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम खासतौर पे अगर हम ब्रेंट की ही बात करते हैं, तकरीबन $85 के आसपास अगर बना हुआ है, और अगर ये इसी स्थिति पे रहता है तो कितनी बड़ी राहत होगी बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए। देखिए, भारत के लिए अगर हम कह सकते हैं कि जो अगर $90 में अटका रहे तो भारत के लिए उतनी चिंता के विषय नहीं है। मतलब जरूर एक प्रेशर आएगा, क्योंकि 85 से 90% का जो तेल कच्चा तेल हम आयात करते हैं, तो थोड़ा प्रेशर आएगा, पर मैं समझता हूँ 90 तक के नीचे तक उतना चिंताजनक बात नहीं होगी। पर ये विंटर का सीजन जो आ रहा है उसमें एक जो कच्चे तेलों के दाम में थोड़ी बहुत इजाफा होता है उसमें, क्योंकि यूएस ने भी काफी स्टॉकिंग बढ़ा दी है और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स कर्व्स काफी लग गए हैं। तो मैं समझता हूँ तेल की जो एक अनिश्चयता जो है वो अभी भी इमर्जिंग और इंपोर्टिंग कंट्रीज लाइक इंडिया के लिए एक चिंता का कारण बना रहेगा। नजर डाल लेते हैं सरफा बाजार पे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना 56,615 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। चांदी 325 रुपए की बढ़त से 67,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों में सोना बढ़त से $1,835.30 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी मजबूती से $21.24 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। ये एक भारतीय अगर बाजारों की बात करें तो जब त्योहारी सीजन आते हैं हम आमतौर पर मानते हैं, हालांकि फिलहाल चूंकि वो श्राद्ध और का समय चल रहा है, इस समय शायद मामूली तौर पर अगर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर वैश्विक तौर पे देखें $1,835 प्रति औंस ये काफ़ी सुलझा हुआ या दबा हुआ रेट कह सकते हैं। डॉलर इंडेक्स को देखें तो वो कहीं 106 के आसपास है। क्या माना जाए कि क्योंकि डॉलर इंडेक्स मजबूत है इसलिए सोने में कमजोरी है, या ये दोनों अभी इसी तरीके से चलते हुए नजर आते हैं और भारतीय बाजारों में जो सोने के प्रेमी हैं उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि कीमतें कम है? मैं समझता हूँ कि सोने की जो डायरेक्शन जो है वो इसी पाथ को फॉलो करेगी, इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। और जैसे आपने कहा कि एक फेस्टिवल सीजन आ रहा है, वेडिंग सीजन भी उसके बाद आएगा, थोड़ी बहुत गर्मी उसमें दामों में जरा एक इंक्रीज जरूर हमें दिखेगा। पर इस वक्त जो आप विश्व की और गोल्ड सप्लाई और गोल्ड डिमांड की ओर देखेंगे, ज्यादा कोई वॉलेटिलिटी मुझे दिखती नहीं है। हाँ, चांदी में भी थोड़ा सा मैं जरूर चाहूंगा कि चांदी में भी चूंकि 72,000 के स्तर के ऊपर अब 67,000 के पास है, बहुत संक्षेप में चांदी की कितनी मजबूती नजर आती है? चांदी जो डिमांड जो है काफी इंडस्ट्रियल डिमांड में काफी एक हमने इंक्रीज देखा है। सिल्वर चांदी में की जो इंडस्ट्रियल डिमांड और वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर आप जो चांदी सिल्वर यूजिंग इंडस्ट्रीज जो है। मिस्टर भट्टाचार्य, कार्यक्रम में समय की बाध्यता है, हमारे पास समय कम है, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में शामिल होने और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए धन्यवाद। Sorry and thank you, Mr. Bhattacharya. Well, friends, before we close, as a reminder, the headlines. Reserve Bank of India maintains the repo rate unchanged at 6.5%. Domestic benchmark indices witness gains of more than 0.5%. Sensex ends near 66,000 mark, while Nifty closes above 19,650 level. And Brent crude price is stable to trading at $84.40 per barrel. That's all we have for you in this edition of Market Mantra, friends. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Amit Goel signing off. Namaskar.
Market Mantra, Mantra.